friends, today I'm going to talk about digital art and I'm going to be doing one too. So let's start. If you're new to my channel, I'm Vedika and today I'm sharing how to do digital illustration. So now I'm going to be talking things you will need to make digital art. So you can even use your phone to create digital art, but it may be a bit tougher to do that because the screen is small and you have to pressurize your eyes in that. So that's the case with phone. Then you can use iPads or tablets. You can use drawing tablets, and I would recommend drawing tablets for professionals. And if you're a beginner, you can start with iPads or phones. I'm using my iPad today and I'm pairing it with my stylus. So I do not have a original Apple pencil, so I have a third party stylus. So let me just show you. This is the stylus which I have. This is basically a link pen which you will get in the market for rupees 20 or 30. So you can buy that if you are a beginner, and yes, this works great, but it does not support palm rejection. That's an problem with this one. Now we are going to be talking about some apps which I would recommend you to install for digital illustration. So there are various apps like iArtbook, IBIS Paint X, even Sketchbook app. So there are many apps which you can install and use, but my favorite is iArtbook because it is similar to Procreate, and Procreate is a paid software. So I would suggest that before paying for Procreate, you should definitely try iArtbook. So here I'm going to be showing you some of my works which I did, and these are some of my works. आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली डिजिटल आर्ट कैसा होता है, एंड हम इसे अभी ट्राई करने वाले हैं. सो काफ़ी मज़ा आएगा. और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, सो इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव एन आईपैड और अ टैबलेट. आप अपने फ़ोन से भी शुरू कर सकते हैं, एंड आप देख सकते हो कि आपको उसकी नीड है या नहीं, उसके बाद आप बाय कर सकते हो. सो कीप दैट इन माइंड. So the first step is to open the app and start a new project. So here I'm choosing A4 size, and there are a bunch of brushes as you can see. So let's just start by inserting a photo. So here I have a picture of a girl which I'm going to be using as a reference. Basically I'm going to be tracing it. So for tracing the image, I'm going to be placing the first layer above the second one, so the color will be visible to us. Basically the outline will be visible. Now I'm using the basic black color, and I'm adjusting the size according to my image, so it may vary to your image also. And yes, basically I'm just outlining the whole stuff. So I'm going to be using the shade of that color in some places. Let me explain you. Now I'm going to be choosing the color of the eye, and then I'm going to be going in the shapes option. So here what is the case, that when you're drawing any kind of a shape, it just makes your shape more perfectly. So as you saw, I was making a circle and it made it correctly. So that's the use of the shapes option. And now as I'm doing the hair, so I'm choosing the color of the hair and then I'm doing the outline, so that what will happen, it may not look different. So after the whole outlining process, I'm gonna be using the bucket option, and I'm gonna be filling the colors in each and everything like I did in the hairband. So I'm gonna be doing the same with the whole image. So यहाँ पे मैंने टॉप का कलर चूज़ करके उसे भी फिल आउट कर दिया है. एंड मेक श्योर कि आपके आउटलाइनिंग प्रोसेस में कोई गैप्स ना रह जाए, और अगर रह जाते हैं तो मेक श्योर टू फिल इट आफ्टरवर्ड्स. अदरवाइज़ आप कलर फिल करोगे तो वो बाहर निकल जाएगा, एंड जो एरिया पे आपको कलर नहीं चाहिए वहाँ भी हो जाएगा.
तो यहाँ पे मैंने हेयर के लिए एक बेसिक सी शेप बना रखी है ताकि वहाँ पे स्किन कलर ना जाए। सो वहाँ मैं हेयर का कलर करने वाली हूँ। तो अब हम हेयर के कलर को भी फिल कर देंगे सिंपली जैसे हर एक केस में किया था, और उसके बाद हम डिटेल्स पे जाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्स पार्ट। एंड यहाँ पे मैंने हेयर स्ट्रैंड्स दिखाए हैं। सो आप भी ऐसा कर सकते हैं ताकि आपकी पेंटिंग थोड़ी बहुत रियलिस्टिक लगे। एंड आई एम यूजिंग a reddish shade for the smile and I'm doing the eyes right now। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी दैट यू हैव टू प्ले विद द ओपेसिटी। सो आपको जो अपना ड्राइंग लेयर है जिस पे आप ड्रॉ कर रहे हो उसकी ओपेसिटी 50% रखनी पड़ेगी ताकि आपको नीचे का रेफरेंस दिख सके, तभी तो आप और अच्छे से डिटेल्स दे पाओगे। तो उसके बाद हमें शेडिंग वाले पार्ट में जाना है। एंड जैसे हम ट्रेडिशनल पेंटिंग में हाइलाइट्स देते हैं, शेडिंग्स देते हैं, सिमिलरली आई एम डूइंग दैट हियर। एंड यहाँ पे काम और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेरियस ब्रशेस यू गेट एंड देर आर वेरियस ऑप्शंस टू पिक अप। तो आप खेल सकते हैं अपने ब्रशेस के साथ एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रशेस आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने कैरेट पे ब्लर ब्रश यूज़ किया है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। एंड थोड़ी बहुत अगर डिटेल्स रह गई हो तो आप बाद में भी उसे फिक्स कर सकते हो। एंड अभी फिर से मैंने अपनी ड्राइंग लेयर की ओपेसिटी कम करके अपने रेफरेंस इमेज को अनहाइड किया है ताकि मैं उसे देख सकूं। और फिर हम सिंपली अपने आईलिड पे वर्क करने वाले हैं। तो मैंने जो कलर मेरी रेफरेंस इमेज में था सिंपली कलर पिकर से उसे पिक कर सेम थिंग मेरी ड्राइंग लेयर पे भी किया है। तो अब मैं अपनी आईज़ में डिटेल्स दे रही हूँ। एंड डिटेल्स देने के लिए जहाँ जहाँ वाइट कलर आप देख सकते हो लाइटर है तो वहाँ मैंने अपनी ब्रश की ओपेसिटी कम की है। पहले मैं लेयर की ओपेसिटी कम कर रही थी पर अब मैंने ब्रश की है क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट पर लाइट शेड चाहिए और एक पर्टिकुलर पार्ट पर डार्क। तो वैसे आपको भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। एंड यस यहाँ पे मैंने और भी डिटेल्स दिए हैं जैसे कि चीक्स बनाए हैं, नोज़ बनाया है, आप देख सकते हो। एंड आपको काफ़ी सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। सो अभी मुझे पहले हेयर पर कैसे स्ट्रोक्स मारे मुझे पहले नहीं आता था। सो मैं पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। एंड पहले तो मैंने इस तरह रफली मारा एंड काफ़ी ठीक लग रहा है बट एक रियल हेयर का इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने काफ़ी चीज़ों को इरेज किया, लाइक हेयर बैंड की तरफ इरेज करेंगे तो नेचुरल लगेगा। एंड उसके बाद मैंने अपने हेयर को इरेज किया जो मैंने हेयर स्ट्रोक्स मारे थे फॉर द बेबी कट विच इज़ लुकिंग प्रिटी बट थोड़ा रियल दिखना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने रेफरेंस इमेज को देखा एंड उस हिसाब से अगेन मैंने हेयर पे स्ट्रोक्स मारे हैं। सो ये आपको प्रैक्टिस कर कर ही आएगा। एंड कुछ स्ट्रोक्स मार के अब मैं इरेज़र से हेयर को इरेज़ कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे नहीं चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी इम्परफेक्शंस दिख रही हैं वहाँ मैंने इरेज़ कर लिया है। एंड दिस इज़ हाउ द हेयर लुक्स लाइक, द बेबी कट लुक्स लाइक। और अब हेयर को टेक्सचर देने के लिए मैंने एक ब्रश का यूज़ किया है जो कि आपको आई आर्ट बुक में मिल जाएगा। एंड उसे यूज़ कर कर ऐसा लगेगा दैट द हेयर इज़ रियल। सो सेम उसके बाद भी जहाँ जहाँ मुझे नहीं चाहिए था उस पार्ट पर मैंने उस स्ट्रोक को इरेज किया है। एंड मुझे हेयर बैंड थोड़ा फीका फीका सा लग रहा था तो मैंने यहाँ सुंदर सा लैवेंडर कलर यूज़ करके उसे भी ब्यूटीफुल बना दिया है। and now I'm choosing the background, so this is the background which I'm going for and ये काफ़ी pretty लग रहा है। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि डिजिटल आर्ट इज़ मच ईजियर दैन ट्रेडिशनल आर्ट।
If you want to change a color, you can just change it with one click. So these are some of the advantages of digital art. So friends, this was my digital illustration. ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड यस, मुझे बड़ा मज़ा आया इसे बनाकर. अगर आप मेरे और भी आर्ट वर्क्स देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हो. एंड यस, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. सो यस, मैं आपको मिलूँगी अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.